ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମ 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 ନାମ ନେଉଥିବା ଲୋକଟା ପରବାଣୀକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଘୁଞ୍ଚେଇ 10 ହାତ ନେଲାଣି। କାମ କିଛି ପଇସାଟେ ନାହିଁ, କେବଳ ରାମ ନାମ ନେଉଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ନାମ ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କିଛି କରିବାର ଯୋଜନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆମେ କରୁ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି ବାସନ୍ତିକ ନବଷଷ୍ଠୀ ବା ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣର ବଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ରାବଣର ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅକାଳ ସମୟରେ, ମାନେ ଅକାଳରେ ଅସମୟରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆବାହନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅସମୟରେ ଅକାଳ ବୋଧିନୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ଆରାଧନା କଲେ ତାର ସ୍ମୃତିରେ ଆମେ ଏମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆବାହନ କରୁ, ପୂଜା କରୁ। ଆମର ମନୋବାଞ୍ଛା କିଛି ଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ମାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ମାନସିକ କରିବା, ଏମିତି କରିବା ଯେ ମୋ ପୁଅ ଭଲରେ ରହୁ, କି ଆମ ଘର ଭଲରେ ରହୁ, ସମସ୍ତ ସଂସାର ଭଲରେ ରହୁ, ଏପରି ମାଗିବାର ଯୋଜନାରେ ମଣିଷ ପୂଜାପାଠ କରେ। ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଟିକେ ବିଚାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟି ବେଳେ ପୂଜା ଏତେ ଆଡମ୍ବର ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂଜାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମନୋରଞ୍ଜନ ବଢିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ନାହିଁ। କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଇଛି କ'ଣ କି ପୂଜାର ଯେଉଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମାଜରେ ମହିଷାସୁର ଗୋଟିଏ ବର ପାଇଲା, ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଦିନରେ ମରିବନି, ରାତିରେ ମରିବନି, ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବନି, ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର ମିଳିଲା। ଆଗରୁ ଦେବତାମାନେ ବହୁତ ହୁଏ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଯେ କାହାକୁ କେଉଁ ବର ଦେବେ ସେ କଥା ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦେଉଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେମିତି ଭସ୍ମାସୁରର ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଭସ୍ମାସୁରକୁ ବର ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିବି ସେ ମରିଯିବ। ଶେଷରେ ସେ ବର ଦେବା ଲୋକ ଶିବଙ୍କଠାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଜି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଇଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ନାମରେ ପରୀକ୍ଷାଟା କେବଳ ସେଇଠି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଜୀବନ ଯାକ ସେ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି। ପୁଅଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୃଣା କରିବା ଏବଂ ହତାଦର କରିବାଟା ଶିଖୁଛି ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ବାପା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ହତାଦର କରାଯାଏ ସେଇଟା ସେ ଘରୁ ଶିଖୁଛି, ବାହାର କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ କହନ୍ତୁନି, ସମାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୋହିତ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଋତ୍ବିକ, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଭିନ୍ନ ପଦରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ହାତରେ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଇଥମ୍ ଯଦା ଯଦା ବାଧା ଦାନବୋତ୍ଥା ଭବିଷ୍ୟତି ତଦା ତଦା ବତିରିଜାହମ୍ କରିଷ୍ୟାମ୍ ଅରିସଂଶୟ। ମା ଦୁର୍ଗା କହୁଛନ୍ତି ଇଥମ୍ ଯଦା ଯଦା ବାଧା, ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, କୋଉଭଳି ବାଧା? ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟର ପରାଜୟ ହୁଏ, ଅସତ୍ୟର ବିଜୟ ହୁଏ, ଅନ୍ୟାୟର ଘୋର ଘନ ଅନ୍ୟାୟର ବିଜୟ ହୁଏ, ନ୍ୟାୟ ପରାହତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜନ ଲଘୁଜନ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳେ ନା, ଯାହାକୁ ମହର୍ଷି ମନୁ କହିଲେ ଅପୂଜ୍ୟା ତତ୍ର ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ପୂଜ୍ୟାନାଂ ଚ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ତ୍ରିଣୀ ତତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷମ୍ ମରଣମ୍ ଭୟ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅପୂଜ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟାୟୀ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ପରଧନ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦେଶରେ ବେଶୀ, ବିଜ୍ଞ, ପ୍ରାଜ୍ଞ, ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସେଥିପାଇଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବେଶୀ। କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ଯାକ ସେବା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆଉ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଏଇଭଳି ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରାହତ ହୁଏ, ଅସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କେହି ଜଣେ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ, କେହି ଜଣେ ମା, କେହି ଜଣେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରୁ ଏ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଲେ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତା। ଦୁଷ୍କୃତମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ କେବେ ପରିତ୍ରାଣ ହେବ ନାହିଁ। ଭଲରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବେ
दुष्ट मानकर दलन नहेले संत मान पालन हो पारे ना। दुनियार बहु जिनस वर्तमान दुष्टामी वृद्धि पाई सहायता करुछि। आपण बजार में अनेक दुकान में मद पाइबे किंतु भल सरबत टिके बर्तमान खोजिले हुए आप बजार में मिल मिछ कहूँ तार मूल कारण कौन? दुष्ट लोक मान दुष्टामी एत बढ़ी जाए शिष्ट लोक मैंने बंद हो जाए नीरव रोचे किंतु नीरव नुहे। आप बुझंतु माँ देखिए चित्र बहुत चरित्र आम शिखु। चित्र कौन देखिलु समस्त देवता माने निज निजर प्रहरण माँ को अर्पण कले कहीं महिषासुर को बध करने। महिषासुर बध नहेले चिंता करूँ ये राष्ट्र में सेमिति शांति प्रतिष्ठा हो पार नहीं। आप एगुड़िक विचार कले शास्त्र पढ़े जानते आजिकल आम से शास्त्र आ पढ़ुन। आम बर्तमान जो शास्त्र भारी अर्थ कर ही पढ़ु जी आमको गढ़ आम दरकार नहीं। आम जी पैसा दब से शास्त्र बेसी पढ़ु। आपण पिला मान को आप भल मनीष करने चाहते ना बड़ मनीष करने चाहती? आया मिछ कथा कहीं कहते भल मनीष करवा लोक गुड़िक से पाठ पढ़ा से कौन कर गुरुकुल छाड़ पाठ पढ़ा जो दरकार जो धार्मिक अनुष्ठान से छाड़ आपण पिला कहते बाबू 80% रखिले 85 जाए रखिले न रखिले केमी इंटरव्यू केमी परीक्षा पास करू केमी चाकरी करू। दुनियार समस्त बाप माँ बर्तमान चाहूँ मो पिला मानू केमी चाकर करी केवे भावी ना मो पिला को मो मालिक कर। ये विचार जिन पर्यटन मनीष को आसनी जे चाकर गुड़िकर व्यवस्था कौन हम आप बुझुन तो आपण मैंने बहुत शिक्षक बंधु अनेक विभिन्न चाकरी कर लोक अच्छा मुझे पचार आज्ञा आम समस्त गोटे सर्विस को अच्छी ना नहीं जो मैंने चाकरी कर सर्विस को अच्छी ना नहीं। सर्विस ओडिया कौन सेवा पुस्तिका आम जन जन सेवक ना चाकरी ताले मोर सर्विस को कहीं अच्छी मुझे गोटे मानसिक नहीं चाकरी करुच्ची चाकरी करने लोक मालिक को संतुष्ट कर भले बुझा सेवा करने लोक जगत को संतुष्ट कर दीटा सामान केमी हम चाकर मालिक को संतुष्ट करुवा डाक्तर मरवा लोक को आयुष पैसा नहीं मालिक को लक्ष लक्ष टका दब मरी जाइए लोक को आयुष पुरेब कौन बुझिपार तो सेवा करुवा डाक्तर आप पिंढारे बसी टाटे प्रेसक्रिप्शन लिखी आपको भल कर आप पिला को आप सेवक करने चाहते ना चाकरी करने चाहती वो आप आजिकल बाप माँ मैंने चाहते मो पिला चाकरी कर चाकरी कौन कर बाप माँ चाकरी तो पैसा दरकार। जो मैंने अन्य को संतुष्ट करने चेष्टा करेंगे से निजर लोक ही हतादर करेंगे। आज संसार जब सबुठ हतादर कही बापा माँ कहीं ना पिला मैंने मैंने बुझे मालिक को बस को संतुष्ट करूँ कि बापा को संतुष्ट करूँ ना। बापा असंतुष्ट है चलो किंतु बस असंतुष्ट है असुविधा हो। एभली जुगे महिषासुर मानकर जो वृद्धि बर्तमान हो महिषासुर कौन कहला जानते से कहला मु जो माने यज्ञ करुछंती विद्वान मानकर यज्ञ को नष्ट करी से कहले आ श्लोकापना भट्टी महाकाव्य महाकवि भट्ट लिखिछंती से कहले देव जदिन निहनम कुर्म पुरम प्रेत नराधिवासन पुर को प्रेत नर मानकर अधिवास करी बुझंत पुर माने गाँ बा नगर ताकू प्रेत नर अधिवास प्रेत माने कौन रही मैंने गाँ को श्मशान करूँ यज्ञ को नष्ट करूँ एवं जो मैंने यज्ञ कर विद्वान ब्राह्मण मान को विनाश करूँ ये आम धर्म। महिषासुर मैंने राक्षस कहते कहले देवता मैंने जो पारे ना से कौन कले बाध्य की एक शक्ति दुर्गा शब्द अर्थ बुझंतु दुख को दाहन करे कहती दुर्गा काल जहाँ आयत्त अच्छे कहती काली काली चित्र आप देखते तो हाथ में मुंड धरते बेकर मुंड माड़ा कर कौन शिखा आमको अरे कि गर्व करुचु कि अहंकार करुचु मुझे एत बड़ घर कर मोर एमती गाड़ी अच्छी मोर एमती पैसा अच्छी मुझे राजा मुझे सरपंच मुझे एमएलए मु मंत्री मु सब किसी करदेवी केड़े केड़े लोकंर मुंड आम हाथ में तू किबा लोक तो मुंड तो मो हाथ रही हाथ में मुंड रही अर्थ कौन दिने समाज को नष्ट हम से तो मुंड मोरी हाथ में अच्छी ताहा हूँ कालर चरित्र काली मूर्ति आम शिखुरी। दुर्गा कौन कहले मु जो शक्ति पाई समस्त द्वारा पाई समस्त पाई शक्ति गोटे काम लगे दुष्टर दलन करी संथर रक्षा करी
किंतु आज आप चिंता करेंगे आपणकर अंचल में जदि किसी अन्याय होते सहीवा लोक बेसी ना कहवा लोक बेसी कहवा लोक आदो विपरीत कथा तो होता नहीं मोर कौन जाऊँच आज्ञा से तार 40% कर 60% खाइला रास्तार मोर कौन असुविधा अच्छी ठीक ना बोल आज्ञा केवल आप एति कम कहते बाबू मो द्वार मोटा लंबे दू आउ कंक्रीट कर दू तू 40% खा मोर दुख ना तू आगो न पकई खाली बाली पकई दू कि मो द्वार मोटा टे कंक्रीट कर दू ये स्वार्थपर मनीष मैंने गोटे गोटे महिषासुर ना मत बुझे असुर क्या जानते असुसु रमते इति असुर पर प्राण को कष्ट दे जगतर अकल्याण करी संसार को ध्वंस कर जी बंचती कहती असुर सुर माने सुबाटे रमण करे ताना हूँ सुर सु माने जगतर कल्याण उद्देश्य पर उपकार करने उद्देश्य धर्मर रक्षा करने उद्देश्य जे रमण करे कहती सुर सब देवता आम हो किसी असुविधा नहीं से कथा माँ चित्र आम कौन देखिले जे अन्य समस्त देवता मानकर प्रहरण और शक्ति मु पाई पाइबार काम मोर हूँ गोटाए दुष्ट शक्ति को दलन करवा जो दिन जड़े मनीष चिंतन कर दुर्गा पाखे पूजा करदे केवल दुष्ट दलन हेनी कौन आज्ञा केत वर्ष दुर्गा पूजा करें आज्ञा 21 वर्ष बर्तन दुष्ट बढ़ी ना कमी कि सत पालन करे मत पचारूना आज्ञा आपन जदि बुझते माँ दुर्गा आम जड़े समर्थक हवा आम जड़े अनुजाई हवा कौन करवा आम गाँव जो मैंने दुष्ट काम करम गाँव जो मैंने समाज अहित कर्म करें सामाजिक दृष्टिकोण दंड आज से कथा ना आज तो विद्यालय दंडमुक्त और गाँ कथा कौन बुझा जाए बधु प्रार्थना कर शिखाए कौन ना जो चित्र आप देखुं तार चरित्र आप चरित्रवान हूँ माँ को चित्र देखिए गोटे कथा आप चिंतन कर कौन ना दुष्ट मान को दलन न करने पर्यंत ये संसार केते दिन बंची से बड़ कथा नुहे कि बंचा भितर केते लोक भल बंचे बड़ आज समाज में दुष्ट लोक मान संख्या बढ़ी जाइए महिषासुर मान संख्या बढ़ी जाइए किंतु दुर्गा मान संख्या बढ़ी कौन माँ मैंने झील मैंने आगे बस तुमको पचार तुम तो पुराण में पढ़ी आजिकल नृत्य नाटिका गीति नाट्य है बहुत कथा शुणी महिषासुर को मारिबा जड़े माँ को उल्लग्न होगा पड़ा कौन आप जानना महिषासुर को मारिबा अन्य कौन उपाय न पाई शेष माँ दुर्गा को वस्त्रहीना हवा पड़ा कहीं ना दुष्टर शक्ति को वृद्धि न करे दुष्ट विनाश होनी ता भितर कामना वासनार अधिक मात्रा मोह सृष्टि न कले से कामनार वशवर्ती नहेले से केवे देवता मान द्वारा विनाश हम नहीं आप जानते आज्ञा मो माँ दुईटी अवस्था उल्लग्न हुए क्षमा करेंगे आज्ञा मुझे जन संसारी लोक मोर माँ अच्छी जो माँ मोर माँ थिला नहांती सीना मोर माँ स्त्री भौणी झील नारी जो चारिटी चरित्र मो पाखे अच्छी मु समस्त को जो जहाँ भाव में भक्ति करवा माँ को जमी भक्ति करवा कथा पत्नी को जमी प्रेम करवा प्रीति करवा कन्या को जमी स्नेह करवा ये सब मुझे जानी माँ दुईटी अवस्था उल्लग्न हुए मते आने मते प्रकाश करने मते आने उल्लग्न हुए मते संसार आलोक देखा उल्लग्न हुए बुझे कि आवश्यकता कौन उल्लग्न हवा आज मोर माँ भौणी को पचारुची आम जो वस्त्र पिंधुचे लज्जा निवारण ना लज्जा प्रदर्शन आपको पैसा किणी दौर किए बापमा दौरान तो अर्थ कौ महिषासुर को मारे उल्लग्न हवा पड़ुची ना महिषासुर सृष्टि होगी आया अरे बापा माँ टे दयाकोरी हाथ जोड़ी दुर्गा पूजा एति शिख मो झील को कौन एपरी वस्त्र देवी ना जो वस्त्र द्वारा महिषासुर सृष्टि हो अरे एति कर आउ दरकार नहीं तार शिखा दरकार कौन पाई ना गोटाए दुष्ट शक्ति को विनाश करने आवश्यक माँ उल्लग्न हुए दुष्ट विनाश कि दुष्ट या आज समाज में बहुत कथा आम देखुचु से कहले आप जानते
ଜଙ୍ଗିର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅର୍ଥ କରି ଯେତିକି ସମୟ ଯିବା କାରଣ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବଚନ